महक उठा चमन चमन, चहक उठा गगन गगन, जो आप आए बज़्म में बढ़ा वक़ारे अंजुमन. Assalamualaikum, good afternoon and a very warm welcome to our respected guests, judges, parents and all the students present here. This is Ansari Zikra, a student of SS English Academy. I wish you all to a very happy Independence Day. Today the air is filled with pride, the tricolor is fluttering high, and every heart is beating with love for our motherland, because we are celebrating the 79th Independence Day of our great nation. मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना. Assalamu alaikum and a very good evening and a very good afternoon to all the present here. My dear friends, guests and my teachers, this is Sheikh Aska in front of you, and today we have all are gathered here to celebrate a very important day to the history of our nation, our Independence Day. It is a day to remember the sacrifices of our freedom fighters, to feel proud of our nation. And here at SS English Academy, we are making this day more memorable with two exciting events: a speech and patriotic song competition, and celebration of talent, patriotism, and the spirit of our nation. Before we begin our competition, let us start our program by seeking the name of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So I would like to invite Sahil Mansoori to recite verses from the Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah, thank you so much Sahil Mansoori for the beautiful recitation. May Allah bless us with peace, unity and progress. And now I want to request my co-host Ansari Ashraf to continue this program. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन. अब हम हमारे जज के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं. हमारे आज के फर्स्ट जज हैं शमीम इकबाल मोमिन सर, जो रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में कई सालों से अपने टीचर्स की खिदमत को इंजाम दे रहे हैं. सर मेंबर है उर्दू लैंग्वेज कमेटी बाल भारती के. सर रईस कॉलेज में 5th से 12th स्टैंडर्ड को उर्दू पढ़ाते हैं. सर तरसील सुखन और तफहीम इकबाल के ऑथर भी हैं. सर को महाराष्ट्र बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से 2018 में एप्रिसिएशन लेटर और अवार्ड से नवाजा गया है. सर को अंजुमन फ़रोग़ तालीम, बुराक एजुकेशन और दीगर कई अदारों की जानिब से इनामात से सरफराज किया गया है. मैं सर के लिए एक लाइन डेडिकेट करती हूँ. भीड़ से हटकर कुछ इस तरह पढ़ना है, भीड़ से हटकर कुछ इस तरह पढ़ना है कि आसमान को छूकर भी ज़मीन पर चलना है. I would like to call on Faruqi to felicitate Shamim sir. थैंक यू ऑन भाई. हमारे आज के नेक्स्ट जज हैं शाहिद नदीम अंसारी सर. सर को 15 years टीचिंग एक्सपीरियंस है. सर हैज़ डन MA B.Ed. सर won SSC English subject topper award by Lions Club. Sir won first prize for speech competition by Scholar English School. Sir was awarded best innovative teacher award on Teachers Day by Kemi
society. Sir has conducted many workshops and seminars for teachers and students as subject expert of English in different schools. I would like to dedicate this शायरी for शाहिद नसीम सर. खुश आमदीद वो आए हमारी चौखट पर, खुश आमदीद वो आए हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ़ करती है. I would like to call Momin Tawheed to felicitate sir. नीचे रखूं यहाँ पर. अब आते हैं हमारी प्रोग्राम की तीसरी जज की तरफ, जो है मोमिन शादाब इकबाल मिस अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल में कई सालों से बतौर असातिज़ा अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं. मिस की क्वालिफ़िकेशन BA, MA, B.Ed उर्दू फ़ारसी है. मिस उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और दीगर कई ज़बानें जानते हैं. मिस को 25 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है. मिस मजमूए तकरीर बुक की ऑथर भी है. मिस SSC बोर्ड की मॉडरेटर भी है. मिस को 2014 में बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया है मुंबई बोर्ड की जानिब से. साथ ही साथ मिस को बेस्ट ऑथर के अवार्ड से भी नवाजा गया है. अगर हम मिस के अवार्ड की अगर गिनने लगे तो शायद ही कम पड़ जाए. मैं मिस के लिए ये शायरी डेडिकेट करती हूँ. जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं. बस एक बार चलने का हौसला रखो, ऐसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं. आई वुड लाइक टू कॉल समरीन अंसारी टू फेलिसिटेट शादाब मिस. वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले प्रोग्राम के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो मैं आपको थोड़ा सी बता दूं. ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि हमने मेंशन किया था कि जो स्पीच की जो कंपटीशन है और जो स्पीच का टाइम है वो 3 मिनट्स है. अगर आप 3 मिनट्स क्रॉस करते हो देन यू विल बी डिस्क्वालीफाई. तो आप डिस्क्वालीफाई ना हो इसलिए आपको 3 मिनट्स पे रोक दिया जाएगा. और जो सॉन्ग का जो टाइम है वो भी 3 मिनट्स है कि 3 मिनट्स के अंदर आपको अपने सॉन्ग को कंप्लीट करना है. और जजेस का इंट्रोडक्शन आपने सुना कि जजेस जो है हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है. शाहिद सर जिनके पास 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिनके साथ मैंने खुद इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाया है, अपना करियर स्टार्ट किया 2014 में. शमीम सर जो 18 इयर्स से रईस हाई स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहे हैं. और शादाब मिस, शमीम सर और शाहिद सर का एक्सपीरियंस अगर आप मिला दो तो शादाब मिस का 32 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है. तो ये बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, बहुत एक्सपीरियंस जजेस है. तो आई होप कि किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन ना हो जजमेंट को लेकर, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट है. कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि शायद जजमेंट इज़ नॉट गुड, बट इफ़ यू सी द थिंग्स फ्रॉम जजेस पॉइंट ऑफ व्यू देन आई होप यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर. राइट, सो विदाउट एनी डिले वी वुड लाइक टू स्टार्ट द प्रोग्राम. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दी स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. है सब कॉन्फिडेंट है? वेरी नाइस. सो आई रिक्वेस्ट अंसारी जिक्रा एंड शेख अस्का टू कम एंड कंटिन्यू द प्रोग्राम. So today's our speech competition. Words have the power to inspire, to move and to ignite the flame of patriotism within us. And today our young orator are here to do just that. And now I see all the students are ready to come on the stage and share their views about the given title. So ladies and gentlemen, put your hands together for the first participant. Please, our first participant is Ansari Zoya Javed. Ansari Zoya Javed. When a tiranga flutters high above us, it is not just a piece of cloth. It carries the story of millions of sacrifices, dreams, and the long march to freedom.
esteemed judges, honorable teachers, and all my dear fellow participants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And today, I will take you on a short journey through the history of Tiranga, its meaning, and why it's remained the pride of India. The story began in 1906 in Calcutta, where a simple tricolor was first raised as a symbol of unity. Years later, in 1921, Pingali Venkaya designed a flag that inspired our freedom movement. And by 1931, the Indian National Congress had adopted a version with saffron, white and green, and a spinning wheel at its center. And finally, gave us the national flag in the form we know today, replacing the spinning wheel to Ashoka Chakra. Do you know? Every part of Tiranga has a message. Saffron calls us to courage and sacrifices. White reminds us to walk in truth and keep peace. Green connects us to our soil, our farmers and our priorities. The Ashoka Chakra, with its 24 stroke, reminds us to keep moving forward. It is easy to speak of symbols, but the flag asks more of us than speeches. When a soldier salutes, when a teacher sharp young minds, the flag becomes living promise, remind us to be brave, honest and hardworking. So, what can we do? 3 simple things: respect, responsibility and survive. Respect our diversity, take responsibility for our studies and choices, and serve the nation in small ways. Next participant is Momin Zainab Atif. Momin Zainab Atif. Some flags are just cloth and colors. Our flag is our heartbeat. When the Tiranga flutters in the wind, it's not just a piece of fabric moving. It's 1.4 billion dreams rising together. It's the echo of our ancestors' courage, the whisper of the sacrifices of our freedom fighters, and the roar of a nation that stands tall in the world today. Good evening, ladies and gentlemen. This is me, Zainab Atif, the storm in disguise, a speaker in the making, standing here to tell you the legendary history of our Tiranga. And today, more than ever, it's our pride, because the Tiranga is not just seen, it's felt. Let's rewind the clock to 1906, the first time a national flag was hoisted on the Indian soil at the Parsi Began Square at Calcutta. That flag looked different. Red, yellow, green. But the dream was the same: freedom. Fast forward to 1921, when Pingali Venkaya, a man with a vision, presented a design to Mahatma Gandhi. 2 colors, presenting the 2 major communities of India. But Gandhiji knew India's heart was bigger than that. So white was added for peace and truth, and the spinning wheel for self-reliance. Ansari Simra Khalid Parvez. Walaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Ansari Simra Khalid. Today my speech topic is मोहनदास से महात्मा तक का सफर. मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था. उनके पिता गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी. गांधी जी ने अपनी शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में पूरी की. सन 1888 में वो इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और ब्रिटिश बैरिस्टर बने. सन 1915 में गांधी जी भारत लौटे और धीरे धीरे भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए. गांधी जी ने बहुत से आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन. गांधी जी ने हमेशा अहिंसा, सत्य, स्वराज और सत्याग्रह को अपने संघर्ष की मूल हथियार बनाए. Participant name is Momin Anaya Zaid. Momin Anaya Zaid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good afternoon to one and all present here.
I am Momin Anaya Zaid from Standard 6th A. Today I feel honored to speak about the history of our national flag, the Tiranga, the pride of India. The Tiranga, which means tricolor, is not just a piece of cloth. It is the living symbol of our nation's unity, freedom and sacrifice. Its history is deeply connected to India's struggle for independence. The first national flag was hoisted in 1906 in Kolkata. It was totally different from today's flag. It has 3 horizontal strips of green, yellow and red. Later, in 1921, Pingali Venkaya, a freedom fighter and visionary from Andhra Pradesh, presented a design to Mahatma Gandhi. That design had 2 different colors, red for Hindus and green for Muslims, with a spinning wheel at the center, symbolizing self-reliance. However, to represent all communities of India, white was later added in between them, symbolizing peace and truth. Finally, on 22nd July 1947, just before independence, the Constituent Assembly adopted our present flag. The red was replaced by saffron and the spinning wheel was replaced by the navy blue Ashok Chakra, taken from the lion capital of Ashoka, symbolizing righteousness, progress and the eternal wheel of law. Each color of our Tiranga holds a special meaning. Saffron stands for courage and sacrifice, white for peace and truth, and green for faith, fertility and prosperity. The Ashok Chakra with 24 spokes reminds us to move forward with justice and discipline. Bhagwan Falak Naz. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार आदरणीय गुरुजन, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने भारत के गौरव, तिरंगे का इतिहास, महत्व साझा करने आई हूँ। हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारे देश की आज़ादी, एकता और बलिदान का प्रतीक है। तिरंगा मेरी पहचान है, तिरंगा मेरी पहचान है, यही मेरा ईमान है। हर लहर में उसकी खुशबू है, हर लहर में उसकी खुशबू है, हर रंग में हिंदुस्तान है। तिरंगे का इतिहास 1906 से शुरू होता है, जब पहली बार कोलकाता में एक झंडा फहराया गया। कई बदलाव के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारे वर्तमान तिरंगे को अपनाया। Our next contestant is Ansari Rida Sufyan. Ansari Rida Sufyan. चलो हम सब वादा करें देश को आगे बढ़ाएंगे, चलो हम सब वादा करें देश को आगे बढ़ाएंगे, गांधी जी के सपनों को हम सब मिलकर सच बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामाईन और हाज़िरीन, मेरा नाम अंसारी रिदा सुफियान है और आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगी जिसने दुनिया को सिखाया कि तलवार से बड़ी ताकत सच्चाई और मोहब्बत में है। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हम सब महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के शहर पोरबंदर में हुआ। वो बचपन से ही सच्चे और ईमानदार थे। झूठ से इन्हें नफरत थी और दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। इन्होंने पढ़ाई में मेहनत की और बड़े होकर वकील बने। वकालत की तालीम के लिए लंदन गए, फिर काम के लिए जनूबी अफ्रीका चले गए। वहाँ एक दिन इनके साथ बुरा सलूक हुआ। एक बार तो इन्हें ट्रेन से ज़बरदस्ती नीचे उतार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुस्तानी थे। वेल डन। तो हमारे क्विज़ का थर्ड क्वेश्चन है, भारत में नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले पहले इंसान कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट, कम ऑन स्टेज। So our next is Siddiqui Tayyaba Muhammad Athar. Siddiqui Tayyaba Muhammad Athar. मुअज़्ज़ज़ सामीन, हकम साहिबान और दूर दराज से तशरीफ़
तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वतन से हो वफादारी यही कुरान कहता है, वतन से हो वफादारी यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मोहतरम हाज़रीन, आज मेरा दिल फ़ख्र से लबरेज़ है क्योंकि मैं आपके सामने बात करने जा रही हूँ उस पहचान की, उस परचम की जो हमारे वजूद की पहचान है, हमारा तिरंगा। दोस्तों, मैं तिरंगा हूँ, हाँ वही तिरंगा जिसे आप स्कूल की छत पर लहराते हैं, खेल के मैदान में जीत के बाद ऊपर उठाते हैं और सरहद पर फ़ख्र से सलाम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैंने खुद अपनी आंखों से गुलामी के दिन देखे हैं। मैंने वो रातें देखी हैं जब मेरा रंग सियाह धुएं में छुप जाता था। मैंने वो लम्हे झेले हैं जब मेरे लिए आवाज़ उठाने वालों को जंजीरों में बांध दिया जाता था। मैंने गंगा के किनारे जवान लाशें बहती देखी हैं। मैंने लाल किले के सामने गोलियां खाते मुजाहिदीन के चेहरे याद रखे हैं। और जब बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून की काल कोठरी में डाला गया, उस वक्त अंग्रेज़ों ने कहा था, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगू जान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उसके जवाब में बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा, गाजियों में बू मैंने लोगों की आंखों में खुशी के आंसू देखे और महसूस किया कि अब मेरा हर झोंका, हर लहर सिर्फ आज़ादी का पैगाम लेकर आएगा। मेरे दोस्तों, आज़ादी को तोहफा मत समझो, ये कर्ज है जो तुम्हें अपनी मेहनत, अपने किरदार और अपने इत्तेहाद से चुकाना है। दोस्तों, मेरे 3 रंग है, 3 पैगाम है। मेरा गहरा ज़ाफ़रानी रंग तुम्हें हौसला, कुर्बानी और अज़्म का दर्स देता है। मेरा सफ़ेद रंग तुम्हारे दिल में अमन, पाकीज़गी और सच्चाई की रोशनी जगाता है। मेरा सब्ज़ रंग तुम्हें खुशहाली और ज़िंदगी की बहार का पैगाम देता है। और मेरे बीच में घूमता अशोक चक्र तुम्हें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में चलते रहना ही कामयाबी है। और आखिर में इस शेर के साथ तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगी। ये खाके वतन जान से प्यारी रहे मौला, हर सिमत यहाँ अमन की बारी रहे मौला। इस मुल्क में नफरत का न गुजरे कोई साया, इस मुल्क में नफरत का न गुजरे कोई साया, इखलाक की खुशबू ही सवारी रहे मौला। शुक्रिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Some leaders win wars, but some leaders win hearts. A man with no crown on his head, no riches in his pocket, and no army behind him, yet he made the world's most powerful empire tremble, not with weapons, but with truth and non-violence. That man was Mohandas Karamchand Gandhi, whom the world now calls the Mahatma Gandhi. Respected judges and my dear friends, Mohandas was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat, an ordinary boy with an extraordinary destiny. In his early years, he was shy, often afraid to speak in public, yet inside him burned a quiet fire for truth. Life took him to South Africa, where he faced the sting of racial discrimination. One incident changed him forever, being thrown out of a train despite holding valid ticket simply because of the color of skin. That humiliation became the seed of his transformation. Mohandas realized that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. एक लाठी, एक चरखा और सत्य का सहारा, मोहनदास से महात्मा बन गया पूरे देश का प्यारा। Our next participant is Ansari Fawzia Gulam. Ansari Fawzia Gulam. और आप सभी शोर ना करें और स्टूडेंट्स को अच्छे से सुने। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।
हाज़रीन मजलिस, मेरा मौज़ू सुखन है मोहनदास से महात्मा का सफ़र। तारीख़ के औराक में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो वक्त के धारे में मिट नहीं सकते। मोहनदास करमचंद गांधी भी उन्हीं में से एक है जो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे में एक आम घराने में पैदा हुए, मगर उन्होंने अपनी ज़ात को सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं रखा बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह बन गए और दुनिया को अदम तशद्दुद और सच्चाई का पैगाम दिया। इब्तदाई तालीम के बाद आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड गए और फिर बैरिस्टर की डिग्री लेकर जनूबी अफ्रीका पहुँचे। उनका ये सफ़र ज़िंदगी का नया मोड़ साबित हुआ, जहाँ उन्होंने नस्ली इम्तियाज़ का ये तल्ख मंजर देखा कि जब वो ट्रेन से सिर्फ इसलिए उतार दिए गए क्योंकि वो गोरे नहीं थे। ये लम्हा गांधी जी के लिए बेदारी का नक्कारा था। इस लम्हे ने उनके दिल में जलती हुई शमा को शोला बना दिया और उन्होंने फैसला कर लिया वो अपनी ज़िंदगी कमज़ोरों और मज़लूमों के हक के लिए वक्फ करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, मगर हथियार से नहीं बल्कि सच्चाई और अदम तशद्दुद से। और यहीं से सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता इख्तियार किया जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया और यहाँ से गांधी जी के मोहनदास से महात्मा का सफ़र शुरू हुआ। So our next participant is Khan Uzma Munawwar. Khan Uzma Munawwar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If I tell you there was a man who defeated the most powerful empire in the world without an army, without guns and without shedding a single drop of blood, would you believe me? Yes, that man was Mohandas Karamchand Gandhi, whom the world reverses as Mahatma Gandhi. जिसने दुनिया को सिखाई लड़ाई बिन तलवार की, जिसने दुनिया को सिखाई लड़ाई बिन तलवार की, वो थे महात्मा, मिसाल है उनके विचार की। Respected judges and my dear friends, on 2 October 1869, in the quiet town of Porbandar, Gujarat, a shy boy was born into an ordinary family. No one could have guessed that this boy, Mohandas, would one day become the voice of a nation and symbol of peace for the world. As a young man, he traveled to London to study law and later to South Africa to practice it. It was there on a cold night in 1893 that an incident changed his life. He was thrown out of a train at Pietermaritzburg station simply because of the color of his skin. Humiliated but unbroken, Mohandas made a silent decision to fight injustice not with anger but with truth and love. जाति धर्म रंग ये सब तो बस परछाई है, जाति धर्म रंग ये सब तो बस परछाई है, असल पहचान तो इंसानियत की सच्चाई है। जिस दिन ये फर्क मिट जाएगा, जिस दिन ये फर्क मिट जाएगा, उस दिन असली आज़ादी कहलाएगा। Next is patriotic song competition, where our talented singers will fill this place with the melody of unity, sacrifice and pride. चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। Let's invite our first participants, Munshi Shamim Talib, to take the stage and dedicate her song to our beloved India. So ladies and gentlemen, please put your hand together for our first singer. जलते भी गए, कहते भी गए, आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने।
ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन। Let's welcome our next participant, Sheikh Khadija Naseem. Sheikh Khadija Naseem. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। Now I would like to call Ansari Mehnaz Wasim for her performance. Ansari Mehnaz Wasim. अस्सलाम वालेकुम। जलते भी गए, कहते भी गए, आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन सह चुके हैं बहुत, सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सकेगा ना अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन थैंक यू। Thank you, Mehnaz. Your performance was truly amazing and inspiring. Round of applause. छोड़ो कल की बातें, कल के नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। Let's invite our next participant is Munshi Barira Talib. Munshi Barira Talib. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे इस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज ज़माना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। Now I would like to call Sheikh Namish Imran. Sheikh Namish Imran. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। Our next participant Siddiqui Javeria. Siddiqui Javeria. अस्सलामु अलैकुम। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। किस इंडियन क्रिकेट प्लेयर ने पहली बार ओडीआई में 200 रन बनाए? पहले कौन बोले? सचिन तेंदुलकर। Now I would like to call a last participant, Ansari Madiha. Ansari Madiha. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया।
जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। जलते भी गए कहते भी गए आज़ादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन, हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। Now there is a one student, Siddiqui Kinza Dilshad. Siddiqui Kinza Dilshad. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। Now we have a debate competition between Ansari Kulsum and Ansari Khadija. Audience, please clap for both. Hello. Good evening everyone. Today we have a debate between mobile phone and bag. Today I am going to tell about the truth of mobile. Mobile is more important than bag. Without mobile life is like a Maggie without masala. Good evening everyone. I am Khadija. Bag is more important. Without bag, school is like a pencil without lead. Khadija, I have mobile. I click a photo of my book and zero lightweight and zero back pain. And if I have a bag, I can keep a big stick that chase you for saying that. Okay. Okay. Okay, in my mobile I can download 1,000 of books, but in your bag you can carry only 5 to 6 books and 2 for your homework that you didn't do. But when teacher asks for homework, can you show your mobile? Teacher said, Beta, go and keep in principal office. At least I will copy the answers in exam. In my bag, I can keep a lunch box, so you can't copy my answer because you're busy to eating my samosa. My mobile has alarm clock to wake up me. My bag has water bottle to wake you up. Fine, but bag is good, but the mobile is cooler. And when maybe mobile is cooler, but bag is lower. Mobile battery is low, but my bag never says low battery. Fine, but on Independence Day, I record my video with mobile and send them online. And got only 2 likes, one from your mom and one from your fake account. Both are very important. Without bag, mobile has no charger. And without mobile, bag has no playlist for walk to school.
Thank you. Have a great day. Happy Independence Day, all of you. Assalamu alaikum everyone. After listening so many speeches and songs, a boy got to understand that the audience is getting tired. So he came and he presented national anthem just to make you stand and just to make you feel fresh, right? So we have feedback about your speeches, about your songs. So without any delay, I would like to call Shahid sir to give feedback about your speech, so you can improve yourself, you can give better performance next time. So big round of applause for Shahid sir. Assalamu alaikum everyone. Congratulations to all the participants who came up here and spoke. The results, whether you win or lose, but always remember the moment you step on the stage, you are a winner. Never lose hope in life, because it's not easy to come up here and speak. Maybe on the other side it's very easy to listen and find out faults in the others. But when you step here, no matter how hard you have practiced, your heartbeat pumps up and you forget many things. Like there were few students who were doing really good, but maybe the lack of practice, or maybe the audience pressure, and they forgot their line and they were not able to recollect what they had practiced. So whenever you get an opportunity like this, come up on the stage and practice and participate, because this was not an intra-school or inter-school, it was an open competition where you willingly participated. And one more, like sir said, to give you some tips, like all the participants really gave us a tough time today. I did not expect that you will speak so good. Your pronunciation, your confidence were all good. But the only thing that few students was lack of confidence. You can be the future orators if you practice hard. And about pronunciation, I would like to advise you to watch some phonics. You are great, but the pronunciation part, you can really work on it, but it's easily available on YouTube. The American accent, you can practice just by listening. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to call Shamim sir to give feedback about Urdu speech. Please everyone, big round of applause for Shamim sir. अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। शाहिद सर ने जो कुछ अंग्रेज़ी में कहा, मैं कोशिश करूंगा बस उसी को उर्दू में आपके लिए ट्रांसलेट कर दूं, इसलिए कि उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं। हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम जो भी कहने वाले हैं किसी से, वो कहने से पहले अपने आप से कहें। अपने आप से कहने को हम कहते हैं मिररिंग, राइट। हमें मिरर के सामने खड़े होना है और जो कुछ कहना चाहते हैं मिरर से कहिए, यानी अपने आप से कहिए। आपको ख़ुद अंदाज़ा लगेगा कि आपका इम्प्रेशन कैसा चल रहा है, आपके जेस्चर्स कहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी स्पीच कंपटीशन के लिए। हम सिर्फ वर्ड से काम नहीं करते, हमारी इंटायर बॉडी वहाँ पर बात करती है। वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो हाउ टू बैलेंस इट, इसके लिए हमें मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। और तलफ़्फ़ुज़ात पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। उर्दू तकरीरी मुकाबले में तलफ़्फ़ुज़ात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं मवाद के साथ साथ। इंग्लिश में वो चीज़ें निकल जाती हैं बहुत आसानी के साथ, लेकिन उर्दू में हम इन चीज़ों से सरफ़ नज़र नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक लफ्ज़ है जलील, उर्दू में जलील, जलाल वाला जलील, और वहीं पर एक लफ्ज़ और है ज़लील। अगर हमने जीम को ज़े पढ़ दिया या ज़े को जीम पढ़ दिया, ज़ाल को, तो बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। जहाँ पे एक शख्स बहुत जलाल वाला था, उसे हमने इंतहाई ज़लील कर दिया, ज़िल्लत वाला कर दिया। तो ये बहुत अहम बात है तलफ़्फ़ुज़ के लिए। बाकी सब इंशाल्लाह धीरे धीरे आप लोगों में वो चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। कोशिश करते रहिए और बस, जज़ाकल्लाह।
यस सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। अब मैं शादाब मिस को आवाज़ दूंगा कि वो यहाँ पर आकर आपने जो सॉन्ग प्रेजेंट किए उसके ताल्लुक से कुछ बातें कहें। अस्सलामुअलैकुम। चिश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन पे वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना चमन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आप सबको यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा था आज का प्रोग्राम। इससे पहले जो एलिमिनेशन जो राउंड हुआ था उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे ऐसे गीत थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। फाइनल राउंड में बहुत अच्छी एक कोशिश रही कि कुछ गीत को फिक्स कर दिया गया कि भाई इन्हीं में से इंतखाब करना है। काफ़ी अच्छा रहा वो। अब चूँकि एक ओपन कंपटीशन था इसीलिए इसमें एज लिमिट कोई नहीं थी और उसकी वजह से जजमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा फिक्स करना बहुत एक मुश्किल काम है। अगर हम जूनियर लेवल लेते हैं तो ऐसे एक 4th है, 5th है स्टैंडर्ड तक ऐसे एक एज लेवल आ जाता है, फिर 8 तक एक एज लेवल आ जाता है। लेकिन चूँकि ये एक ओपन कंपटीशन था तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा गया। अब चूँकि बच्चे छोटे हैं तो वो फ्लो नहीं आ सकता, वो एक फोर्स नहीं आ सकता जो बड़े बच्चों में आता है सिंगिंग में। तो उन चीज़ों को देखकर एक जजमेंट करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आप लोग उससे मुत्तफिक होंगे। बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। साइम का बहुत शुक्रिया। साइम सर नहीं, वो बच्चा है हम लोगों का, हमारे सामने बड़ा हुआ है, इसीलिए हम तो हमेशा साइम ही कहते हैं, साइम बेटा ही कहते हैं। तो शाही सर की तरफ से, शमीम सर की तरफ से, मेरी तरफ से SS एकेडमी का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इतनी इज़्ज़त दी, बुलाया, और आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि इतने वक्त तक बैठे रहे और हम लोगों को सुना। बहुत सारी बातें शाही सर ने, शमीम सर ने बताई, वही तकरीबन वही बातें गीत में भी आती हैं कि चाहे हिंदी हो उसका भी एक प्रोनंसिएशन है वो एक बराबर होना चाहिए, और उर्दू है तो वो भी होना चाहिए। असल में बात सिर्फ इतनी होती कि जो भी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसका पूरा हक़ अदा कर सकें बस। अगर हम अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, यहाँ पर सुना हमने कि बाज़ बच्चों ने बहुत बेहतरीन अंग्रेज़ी का एक जो स्टाइल है उसमें तकरीरें पेश की। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो हमने नोट की तीनों ने, कि तकरीर में जो एक्शन नहीं करना था जितना ज़्यादा, वो बच्चों ने बहुत किया। जबकि जब हम सॉन्ग पेश करें तो उसमें हम एक्शन कर सकते थे, मेरा वतन वही है, ए वतन, इस तरह। तो वो एक ऐसे खड़े रहकर, और बहुत सारे बच्चों ने जो गीत गाया है, तो ज़रा सा अगली बार अगर आप लोगों को शौक़ है तो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान रखें। इंशाल्लाह और अच्छी तरह हम इसको पेश कर सकेंगे। आज भी बहुत अच्छा आप लोगों ने पेश किया। जो जीता उसको बहुत मुबारकबाद, जो नहीं जीता उसको ये सोचना है कि मैं हारा इसीलिए ये जीता है, तो मेरा शुक्रिया पहले अदा करो कि हम पीछे हैं तो तुमको हमने आगे किया है। हाँ, ये जज्बा, ये हौसला दिल में रखना है प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ना है। ये सिर्फ एक ये मंजिल नहीं, सिर्फ एक कदम है, एक स्टेप है। मंजिल अभी बहुत दूर है, आप लोग बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सारा सफ़र तय करना है। तो इसी जोश, जज्बे, हौसले से, वलवले से आगे बढ़ते रहें, अच्छे अच्छे गीत गाते रहें, अच्छी अच्छी तकरीरें पेश करते रहें, और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी बोलें। साइम को बहुत शौक़ है कि हम अंग्रेज़ी की मोहब्बत में एकदम गिरफ़्तार हो जाएं, तो यकीनन बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, बहुत सारे और हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। अभी हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस है स्पीच में, सॉन्ग में, स्पीच में हमने 5 स्टूडेंट्स को चुने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, और सॉन्ग में 3 है। बट बिफोर दैट वी हैव सम स्पॉन्सर्स, बिकॉज ऑफ देम ओनली आई थिंक this program got successful. So big round of applause for all our sponsors, as you can see, right? तो हम चाहते हैं कि पहले उनको फेलिसिटेट कर दे, बिकॉज उनकी भी कुछ मसरूफियत है, उन्हें भी किसी प्रोग्राम में निकलना है, तो हम पहले उनको फेलिसिटेट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो स्टेज पर जो लोग बैठे हुए, वो हमारे स्कूल में तकरीबन 20 से 25 साल 30 साल न जाने कितने सालों से
एज अ प्यून, एज अ खाला वो अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उन लोगों को हमने एज अ गेस्ट इस प्रोग्राम में बुलाया। तो आप लोग इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए, बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है इन्होंने। तो स्पॉन्सर्स का फेलिसिटेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेलिसिटेट करेंगे शारिका मैम को, जो मेजरीन स्कूल के फाउंडर है। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑन फारूकी को। ऑन फारूकी, यशब अंसारी यशब आप आ जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शारिका मैडम से, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर शारिका मैडम। मेजरीन स्कूल के फाउंडर है, किड्स एरिना भी इनकी एक स्कूल चलती है और काफ़ी अच्छा इनका कोऑर्डिनेशन है। शी इज़ वेरी गुड इन नेचर एंड आई हैव ऑल्सो कंडक्टेड सो मेनी लेक्चर्स इन हर स्कूल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर शारिका मैडम। वेलकम मैम। नेक्स्ट जो हमारे स्पॉन्सर है डिजिटल कंप्यूटर के अंसारी शमा। डिजिटल कंप्यूटर अंसारी शमा, मैं उनको आवाज़ देता हूँ कि स्टेज पर आए। बिग राउंड ऑफ अपलॉड एवरीवन। शेख अस्का, आई रिक्वेस्ट शेख अस्का टू फेलिसिटेट अंसारी शमा मैडम। डिजिटल कंप्यूटर के ये फाउंडर है, इनकी कंप्यूटर की क्लासेस हैं, वहाँ भी मैंने कई सारे लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं और हमारे सारे प्रोग्राम्स में ये लोग आते हैं, अटेंड करते हैं। तालियाँ बज नहीं रही है, आई थिंक सारे लोग थक चुके हैं। अब आपको यही काम करना है, यू जस्ट हैव टू क्लैप। थैंक यू सो मच अंसारी शमा मैडम टू बी आवर स्पॉन्सर। नेक्स्ट वी हैव राना आकिफ मैम, जो आर एकेडमी के फाउंडर है, जो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है और उनकी ही जो है स्टूडेंट जो कि काफ़ी क्लोज है उनसे, महजबीन अंसारी, वो राना मैडम को फेलिसिटेट करेंगे। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर राना मैडम। आप तालियां बजाना है आपको। सैयद महजबीन, वन करेक्शन, सैयद महजबीन। राना मैडम एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है एंड शी इज़ वेरी वेल नोन इन अ सिटी। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल नो हर। क्लैप फॉर हर एवरीवन। नेक्स्ट हमारे साथ एक और सर मौजूद है जो A+ एकेडमी के फाउंडर है, अनस सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंसारी शादाब से कि अनस सर को फेलिसिटेट करें। अनस सर, एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड। इनकी साइंस और कॉमर्स की 11-12 की एकेडमी है और ही इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड एंड माई जिम पार्टनर ऑल्सो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्लैप फॉर हिम। तालियां बजना चाहिए। नेक्स्ट हमारे साथ है क्लैप। वेलकम। नेक्स्ट वी हैव विथ अस सुमैया फैज़ान। शी इज़ द फाउंडर ऑफ SMD Organics. She has all the organic products. If you want, you can contact her. लास्ट में इन सभी लोगों का विजिटिंग कार्ड इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा, तो आपको जैसे भी ज़रूरत है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अंसारी ज़िक्रा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सुमैया फैज़ान जो SMD ऑर्गेनिक्स के फाउंडर है उनको फेलिसिटेट करें। अंसारी ज़िक्रा, क्लैप फॉर हर। Thank you so much to be a sponsor. Next we have Sheikh Naveed and he has his own business. He's the owner of SR Marriage Hall जो कि बहुत फेमस है, right? Everyone knows that. काफ़ी सारी शादियाँ आपने वहाँ पे अटेंड की होगी, हो सकता है आप में से किसी की शादी वहाँ पर फ्यूचर में भी, right? तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा खान अदनान जो हमारे वॉल्टियर है वो शेख नवीद भाई को फेलिसिटेट करें। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर शेख नवीद भाई। ही इज द ओनर ऑफ SR मैरिज हॉल। तालियां बजना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव अंसारी हिना।
शी इज़ द फाउंडर ऑफ HS Academy. I request Sheikh Aliza to felicitate Ansari Hina madam. Is she here? Yes, she is coming. She is the founder of HS Academy. Clap for her. जिनके सपनों में जान होती है और तालियां वहीं बजाते जिनके हाथों में जान होती। मुझे पता था ये शेर मुझे बोलना पड़ेगा आखिरी में, इसलिए मैं याद कर कर आया था इसे। ऑन फारूकी इज ही अवेलेबल? ऑन फारूकी, हाँ। नेक्स्ट वी हैव आयत शेख, जो हमारे सबसे छोटे स्पॉन्सर है, जो एक आर्टिस्ट भी है और एक बहुत अच्छे स्पीकर भी है, और शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। आयत शेख, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑन फारूकी को कि आयत शेख को फेलिसिटेट करें। इन्होंने भी अपनी एक स्पॉन्सरशिप ली है इस प्रोग्राम के लिए। बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आयत शेख। ऑन फारूकी विल फेलिसिटेट आयत शेख। Thank you so much Ayat for this return gift. Thank you. Thank you. Next we have Ansari Sabah Kausar. She is the founder of SK Studio and she is a professional makeup artist. I request Ansari Samrin to felicitate Ansari Sabah Kausar. She is the founder of SK Studio, professional makeup artist. फिर से वो शेर बोलना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट वी हैव तबस्सुम इरफान। शी इज़ द फाउंडर ऑफ ब्यूटी हेवन, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। आई रिक्वेस्ट मोमिन तौहीद टू फेलिसिटेट तबस्सुम इरफान, फाउंडर ऑफ ब्यूटी हेवन एंड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। Next we have Sheikh Sana Kausar. She is the founder of MS Collection and she has a multi-purpose group and she is also a teacher of Oswa School. Sana Kausar, big round of applause for Sana Kausar. I request Ansari Zikra to felicitate Sana Kausar. Everyone, big round of applause. And last but not the least, we have one more sponsor and one last sponsor, Rangrez Outfit, Ehtesham Rangrez. Ehtesham Rangrez is not only the founder of Rangrez Outfit, he is my student also. So he has his own outfit business at Thana Road. So I request Sheikh Afaq to felicitate Ehtesham Rangrez. Everyone, big round of applause for Ehtesham Rangrez. Boys, if you want to buy shirt, t-shirt and jeans, you can contact him. Very soon I am going to visit his shop. Clap for him. As a student वो मुझे felicitate करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच ऑल दी स्पॉन्सर्स, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज जो भी आपने अमाउंट पे किया इसके लिए बहुत अच्छे सोशल कॉज के लिए आपने पे किया, तो इंशाल्लाह इसका ज़रूर आपको रिटर्न मिलेगा। अब हमारे जो जजेस हैं हम उनको एक बार और फेलिसिटेट करना चाहेंगे।
थोड़ा सी बाकी है मैडम। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा शेख अस्का से कि वो शादाब मिस को फेलिसिटेट करे। इनका प्रॉपर फेलिसिटेशन नहीं हो पाया था और जिसकी वजह से हमें इनको दोबारा फेलिसिटेट करना है। नेक्स्ट वी हैव शमीम सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वॉलंटियर में कोई है जो बचा है जिसको स्टेज पर नहीं बुलाया गया, बॉयज़ में? शेख नदीम, हाँ शेख नदीम, आई रिक्वेस्ट शेख नदीम टू कम एंड फेलिसिटेट शमीम सर। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर शमीम सर for giving his precious time. Next we have Shahid sir, so I request Sahil, Mansoori Sahil to felicitate Shahid sir. Big round of applause for Shahid sir. बच्चे तालियां नहीं बजा रहे हो, अपने प्राइस पे ही तालियां बजाएंगे मुझे पता है, इसलिए वो सेगमेंट को हमने एंड में ही रखा है। अब हमारे बीच जो हमारे गेस्ट जो स्टेज पर बैठे हुए, अब हमें उन्हें भी फेलिसिटेट करना है। काफ़ी वक्त से वो लोग बैठे हुए, नियर अबाउट 4 बजे सब आकर बैठे। सो एक बार ज़ोरदार तालियां दोबारा हो जाए उनके लिए। सबसे पहला नाम जो मेरे पास है वो है मोमिन फिरदौस खाला का, जो साफिया स्कूल में तकरीबन 18 साल से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, 18 साल से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा राना मैडम से कि मोमिन फिरदौस खाला को फेलिसिटेट करें। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड। ये साइम सर के हाथ से माइक लेने के लिए पहले तो सॉरी। ख़ास बात ये बतानी है कि ये वो लोग हैं जो स्कूल अगर 7 बजे शुरू होने वाला है तो इनको 6:30 बजे हर हाल में स्कूल में मौजूद रहना है। गेट का ताला इनको खोलना है, सफाई इनको करनी है। ये बेल अगर नहीं बजाएंगे तो स्कूल स्टार्ट नहीं होगा। और एक ख़ास बात, अगर ये बेल नहीं बजाएंगे तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, इसीलिए इनकी बहुत अहमियत है। इनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाएं। और वो तमाम बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो हाथ उठाएं, जिस स्कूल के भी बच्चे हैं वो हाथ उठाएं। अपने स्कूल में जाकर अपनी तमाम सहेलियों को कहना है कि खाला लोगों का बहुत एहतराम करना है, क्लासेस को साफ़ रखना है, कचरा नहीं करना है, लास्ट पीरियड में कचरा खुद उठा के डस्टबिन में डाल देना है, जितना हो सके उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मेहनत करते, सारा दिन दौड़ते रहते हैं। बेल बजाएंगे, कचरा साफ़ करेंगे, हमको पानी चाहिए, बाथरूम साफ़ रखना है। और एक ख़ास बात देखो कितने अच्छे खाला लोग होते हैं। मैथ्स का पीरियड हमको पसंद नहीं है, अगर इन्होंने 5 मिनट देर से बेल बजाई तो कितना बुरा लगेगा हमको, है ना। हम तो चाहेंगे कि ये लोग 5 मिनट पहले बेल बजा दें। मराठी के पीरियड में हम सोचते हैं पीरियड कब ख़त्म होगा। खुर्शीद खाला का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जल्दी से बेल बजा दी। फिरदौस खाला का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जल्दी से बेल बजा दी। तो इसीलिए खाला लोगों का बहुत एहतराम करना बेटा। जैसे हमारे घर में अम्मी लोग होते हैं ना, खाला लोग होते हैं, वैसे ये होते हैं। तो इनकी बहुत इज्जत करना, इनका बहुत एहतराम करना, ठीक है। बहुत शुक्रिया मैडम। अब हमारे बीच मोमिन खुर्शीद खाला है, जो पिछले 23 साल से साफिया स्कूल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, 23 साल से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेख आयत, जो हमारे एक स्पॉन्सर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आयत जो है खुर्शीद खाला को फेलिसिटेट करें। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारे बीच मौजूद है अकीला खाला, जो रफ़ीउद्दीन में पिछले 6 साल से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तबस्सुम इरफान से, तबस्सुम इरफान जो ब्यूटी हेवन के ओनर है, वो
हमारे अकीला खाला को फेलिसिटेट करें। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड। आप लोग तालियां नहीं बजा रहे। उसके बाद जुलेखा खाला। जुलेखा खाला जो है वो 22 साल से रफ़ीउद्दीन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 22 साल से 22 ईयर्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शमा मैडम से, डिजिटल कंप्यूटर के फाउंडर, वो जुलेखा खाला को फेलिसिटेट करें। रफ़ीउद्दीन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। उसके बाद हमारे बीच फ़कीर शबनूर खाला। फ़कीर शबनूर। फ़कीर शबनूर खाला ये तकरीबन 6 साल से रफ़ीउद्दीन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा शेख सना कौसर, MS कलेक्शन के, इनको फेलिसिटेट करें। उसके बाद हमारे बीच अनीसा अक्सा। ये भी तकरीबन 20 साल से रफ़ीउद्दीन स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। 20 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा सुमैया फैज़ान, जो SMD ऑर्गेनिक्स के फाउंडर है, वो ये खाला को फेलिसिटेट करें। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर अनीसा अक्सा। जी आपका नाम? रहीमा। रहीमा। बैठिए ना आप, बैठिए। एक काम करो ना, नेक्स्ट हमारे बीच नाहिद खाला है, जो सलाउद्दीन स्कूल में 25 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंसारी सबा कौसर से, जो SK स्टूडियो के फाउंडर है, अंसारी सबा कौसर, वो नाहिद खाला को फेलिसिटेट करे। 25 साल से। मेरा नाम लैला शेख। एक और खाला है जो सलाउद्दीन स्कूल से, शेख लैला खाला, जो 26 साल से, पिछले 26 साल से सलाउद्दीन स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शीज़ा से कि वो फेलिसिटेट करे। अक्सा स्कूल से हमारे बीच एक और खाला मौजूद है, रहीमा पीरज़ादे खाला, जो 25 साल से अक्सा स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 25 साल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंसारी ज़िक्रा से कि वो रहीमा पीरज़ादे खाला को फेलिसिटेट करे। बिग राउंड ऑफ अपलॉड एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतनी सारी तालियां बजाने के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। अब जो है हम लोग फाइनल जो है रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे स्पीच का, उसके बाद सॉन्ग का। तो सबसे पहले स्पीच कंपटीशन में हमारे पास 5 प्राइजेस है, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 5th वन। तो 5th प्राइज़ जिनको गया है उनका नाम है खान ज़ारा मुनव्वर। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहिद सर के कि 5th प्राइज़ दे खान ज़ारा मुनव्वर को। 5th प्राइज़ ट्रॉफ़ी, वॉलंटियर्स, 5th प्राइज़ की ट्रॉफ़ी।
Zara, she got 5th prize. Congratulations Zara. Now 4th prize के लिए मैं आवाज़ दूंगा अंसारी फौजिया गुलाम. She got 4th prize, Ansari Fawzia Gulam. I request Shamim sir to give 4th prize to Ansari Fawzia Gulam. Everyone के लिए भी तालियां नहीं बज रही. 3rd prize in speech competition, and it goes to a girl who got 5th prize. She is her sister, Khan Uzma Munawwar. खान उज़मा मुनव्वर. मैं रिक्वेस्ट करूंगा शादाब मिस से कि 3rd प्राइज़ दे खान उज़मा मुनव्वर को. बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर खान उज़मा मुनव्वर. रिक्वेस्ट है कि फ़ोटो लेते रहे वो. बिग राउंड ऑफ अपलॉड. सेकेंड प्राइज़ जिनको गया है उनका नाम है, एनी गेसेस? मोमिन Anaya Zaid, 2nd prize. I request Shamim sir again to give 2nd prize. Momin Anaya Zaid, 2nd prize. उसके साथ एक गिफ्ट भी है वहाँ पर. Everyone big round of applause for her. फर्स्ट प्राइज़ हम अनाउंस करेंगे स्पीच का, लेकिन पहले हम लोग सॉन्ग का 3rd and 2nd करेंगे. उसके बाद दोनों फर्स्ट की तरफ आएंगे हम लोग. तो सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं. सॉन्ग कंपटीशन में 3rd प्राइज़ जिनको मिला है उनका नाम है शेख खतीजा नसीम. शेख खतीजा नसीम. मैं रिक्वेस्ट करूंगा शादाब मिस से कि 3rd प्राइज़ दे शेख खतीजा नसीम को. एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर शेख खतीजा नसीम इज़ विनर. सॉन्ग कंपटीशन में उनका नाम है मुंशी बरीरा तालिब. मुंशी बरीरा तालिब. मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहिद सर से कि 2nd प्राइज़ दें मुंशी बरीरा तालिब को. बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर हर. हमारी क्लास में एक कंपटीशन हुआ था जिसका प्राइज़ हम लोगों को 15 अगस्त को देना था. उनके 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए, तो मैं चाहूँगा कि उनको अवार्ड देने के बाद हम लोग फर्स्ट प्राइज़ अनाउंस करें. सबसे पहले है अबान. मैं रिक्वेस्ट करूँगा अबान को वो स्टेज पर आए. एक कंपटीशन था हमारी क्लास पे जिसका प्राइज़ इनको मिला है. अबान प्लीज़ कम फॉरवर्ड. एवरीवन क्लैप फॉर हिम. तो कंपटीशन हमारी क्लास पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसमें शेख खतीजा को फर्स्ट प्राइज़ मिला था. शेख खतीजा 2nd मिला था. ओके, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट. थैंक यू. सो बिग राउंड ऑफ अपलॉड. मैं रिक्वेस्ट करूँगा समरीन से कि अबान को प्राइज़ दे. शेख खतीजा. I request Samreen again to give this award. Next we have first prize in speech and song. पहले स्पीच या पहले सॉन्ग? पहले स्पीच. ठीक है, पहले मेरी स्पीच थोड़ा सी 5 मिनट में आपको बोलना चाहूँगा. उसके बाद फर्स्ट प्राइज़ देन फिनिश. जस्ट आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स. मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से तकरीबन हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं. पेट्रोटिक सॉन्ग जो चल रहा है हमारा पिछले 10 साल से चल रहा है. और रिपब्लिक डे कंपटीशन, इंडिपेंडेंस डे कंपटीशन, टीचर्स डे कंपटीशन. तो एक बैड न्यूज़ ये है कि ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस डे का. कंपटीशन जो हम लोग करवाते हैं उसका एक वाहिद रीज़न ये है हमारी मसरूफियत.
मसरूफियत की वजह से हो सकता है कि आगे हम इस तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज ना करा पाए। मकसद हमारा यही था कि स्टूडेंट्स के अंदर का टैलेंट निकालना, उनको स्टेज प्रोवाइड करना, उनको एक स्टेज देना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हमने बहुत मेहनत की एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में। आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने की वजह से और बहुत टाइम की कमी होने की वजह से अभी हमने डिसीजन लिया कि हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम से हमारे ये प्रोग्राम्स जो है शायद ना हो बिकॉज ऑफ अ बिज़ी शेड्यूल। बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर कुछ मौका बना हमारा, हम लोग आप लोगों के लिए प्रोग्राम ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। कोशिश यही है मैडम कि हम लोग करें, बट थोड़ा सी वक्त की मसरूफियत की वजह से हमें टाइम कम मिल रहा है। जी जी, ज़रूर थैंक यू सो मच मैडम। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कर पाए, बट फ़िलहाल के लिए आप जहाँ पर भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप वहाँ जाकर अटेंड करें, पार्टिसिपेट करें। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इसी वजह से आया है। और आज जो इंडिपेंडेंस डे है, तो एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा। मैसेज ये है कि आप जहाँ पर भी जाए, जो भी करे, वो अपने देश के लिए करे। अपने देश को जो है, अपने जो नेशन को अपने माइंड में रख के करे। और उस पर 2 लाइन मैंने बहुत खूबसूरत लिखी है, उसके बाद मैं प्राइज़ अनाउंस कर दूँगा। ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, ना किसी एक कास्ट के लिए काम करना है, ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, ना किसी कास्ट के लिए काम करना है। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, मुझे सारे हिंदुस्तान के लिए काम करना है। तो आप जब भी काम करें तो माइंड में एक कम्युनिटी वाला वर्ड ना रखें। आप एक इंडियन है, आपको हर किसी के लिए काम करना है। अ पर्सन कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजन, एनी कास्ट, फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, यू हैव टू वर्क फॉर एवरीवन। दिस इज़ ट्रू पैट्रियोटिज्म, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जिसकी आप देख रहे हो झलकियाँ बहुत सारे सॉन्ग्स में, स्पीचेस में। तो ये ही सही पैट्रियोटिज्म है। राइट, नाउ मूव टुवर्ड्स फर्स्ट प्राइज़ विनर। स्पीच में पहले अनाउंस करना है, ठीक है। स्पीच में फर्स्ट प्राइज़ जिनको गया है उनका नाम है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। गेस इट। सिद्दीकी तैयबा अथर, सिद्दीकी तैयबा मोहम्मद अथर। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहिद सर से कि ये फर्स्ट प्राइज़ दे। नंबर 63। ये जो है हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो रईस शेख साहब ने बहुत अच्छी बनाई है, स्कूल नंबर 62, वहाँ के तालिबे इल्म है। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर सिद्दीकी तैयबा अथर, फर्स्ट प्राइज़। वो गिफ्ट दे दो। भाई और सिस्टर है। अच्छा, बुला लो ना। इनके भाई मेरे स्टूडेंट है एक्चुअली, सिद्दीकी हमज़ा। वो खुशी का इजहार बहुत दूर से कर रहे हैं। मैंने देखा उनको काफ़ी खुश हुए वो जब उनका नाम अनाउंस हुआ। तो मैं चाहता हूँ वो अपनी खुशी का इजहार स्टेज पर आकर सिद्दीकी तैयबा के साथ एक फ़ोटो लेकर वो खुशी का इजहार करें। सिद्दीकी हमज़ा। फर्स्ट प्राइज़ सॉन्ग कंपटीशन। जब तक आप गैस करें किसको मिला फर्स्ट प्राइज़। फर्स्ट प्राइज़ इन सॉन्ग कंपटीशन एंड इट गोज़ टू अंसारी। कितने अंसारी थे जो सॉन्ग में? अंसारी महनाज वसीम। आई रिक्वेस्ट शादाब मिस टू गिव फर्स्ट प्राइज़ टू अंसारी महनाज वसीम। Big round of applause for her. She has sung so beautifully. Her song was amazing. इस प्रोग्राम के बाद इस हॉल में एक और प्रोग्राम है। वक्त की कमी की वजह से हम लोगों को थोड़ा सी जल्दी रैप अप करना पड़ रहा है, वरना हमारी कोशिश ये थी कि हम 8-9 बजे तक प्रोग्राम को कंटिन्यू कर दें। मैं 2-3 गाने भी आपको सुनाने वाला था पैट्रियोटिज्म के, बट अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी की वजह से वो रह गया। और भी कुछ रह गया है वहाँ पर, वो बता रहे वॉलंटियर सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि
हमारे इवेंट को सक्सेस बनाने के पीछे सर के और स्टूडेंट और इसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स रहते हैं उनकी भी बहुत मेहनत रहती है। रात दिन हम एक कर सारे काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है राना मिर्ज़ा आकिब। उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट दिया है जो हम सारे वॉलंटियर्स के लिए है। मैं मैम के लिए बस एक शेर बोलना चाहूँगी। आपसा लहजा नहीं मिलता, आपसी खुशबू नहीं मिलती, आपसा लहजा नहीं मिलता, आपसी खुशबू नहीं मिलती, हमें तो शहर में कोई आप जैसी नहीं मिलती। मैं वक्त बहुत कम है राना मैम, इसलिए मैं चाहूँगी आप हमारे एक वॉलंटियर्स जो है आप अपने हाथों से अपना गिफ्ट उन्हें दें। ज़िक्रा प्लीज़, ज़िक्रा, समरीन, जितने वॉलंटियर्स हैं सारे स्टेज पर आ जाइए। बॉयज़ के लिए भी, सब के लिए, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेज पर आ जाइए प्लीज़। और वॉलंटियर्स, हाँ ये बहुत अच्छा है, बाद में आप लोग आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। थोड़ा सी आप लोग वॉलंटियर्स के लिए भी तालियां बजा दें, काफ़ी मेहनत की इन लोगों ने प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट टाइम फॉर, हाँ एक गिफ्ट है जो मुझे उमैर अंसारी मुझे देना चाहते हैं, जिन्होंने आपको नेशनल एंथम के लिए खड़ा कर दिया था। प्राइज़ मिला है वो स्टेज पर आ जाए एक ग्रुप फोटो के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्राइज़ वाले।